آج ہم نے موضوع یہ چنا ہے کہ کیا میڈیا معاشرے میں بگاڑ کا ذمہ دار ہے یا نہیں. ہم نے مختلف جا کے طلباء، طالبات اور دوسرے لوگوں سے پوچھنا ہے تاکہ ناظرین کو بتا سکیں کہ کیا معاشرے میں بگاڑ کا ذمہ دار میڈیا ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے بعد انالیسس کرنا آپ کا کام ہے. آئیں ناظرین چلیں اور ان طلباء طالبات سے بات کریں. آئیں ناظرین. ذمہ دار نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے. بلکہ میڈیا کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوا ہے ہم عوام کو کہ ہماری جو بھی مطلب ہے ہماری ڈیمانڈز ہیں، جو بھی ہماری چیزیں وہ ہم حکومت تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا جو ہے یہ بگاڑ کا ذمہ دار ہے. بگاڑ کا اصل ذمہ دار کوئی اور ہے. میڈیا تو میں سمجھتا ہوں اس بگاڑ کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. بگاڑ کا ذمہ دار آج کل تو ہماری حکومت ہی ہے. میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ ہے آج کل کے دور میں. جیسا دور چل رہا ہے جہاں بھی کوئی ڈسٹریکشن ہوتی ہے کسی وجہ سے تو میڈیا فرسٹلی جو ہے وہ پہنچ کر یہ بات جو ہے وہ پوری کنٹری میں پہنچاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا اس بارے میں جو ذمہ دار ہے کسی بھی چیز کا. آئی لو میڈیا. میڈیا بہت بیسٹ ہے ہماری کنٹری میں. میڈیا دونوں طرح کے رول رکھ رہا ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو نیگیٹو رول جو ہے وہ زیادہ پھیل رہا ہے میڈیا کی وجہ سے. میڈیا کے اندر جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، مختلف ڈیز ہیں، تو ان سے نیگیٹو افیکٹ بھی ملتا ہے. تو ہماری جو عوام ہے وہ زیادہ نیگیٹو چیز کو کاپی کرتی ہے، نیگیٹو چیز کو فالو کرتی ہے. تو میڈیا دونوں رول ہیں لیکن نیگیٹو رول زیادہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھوں معاشرے میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بگاڑ کا جو ہے وہ سبب میڈیا ہی بن رہا ہے. اس لیے کہ چھوٹوں سے لے کے بڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا میڈیا ان پر نیگیٹو اسباب چھوڑ رہا ہے. ایون کہ ہم بچوں کے کارٹونس دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی ممنوعہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایز سچ نہیں ہونی چاہیے بچوں کے کارٹونس میں. اور سیم ہیئر ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ساری میڈیا کے تھرو ویسٹ کو فالو کر رہی ہے. اور ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ان میں بھی وہ اقدار وہ ویلیوز نہیں رہی ہیں جو پہلے کے بڑوں میں ہوا کرتی تھیں. وہ یہ سارا کچھ آئی تھنک میڈیا کا بگاڑ ہے. تک نہیں ہے، لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہے، لوگ اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں. میڈیا میں بہت سی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، بہت سی خراب چیزیں بھی آتی ہیں. اب یہ لوگوں کا اپنا پرسیپشن ہے، اپنا وے آف ہے کہ وہ کس طرح میڈیا کو لیتے ہیں. لیکن میڈیا کا بھی کچھ قصور ہے اس میں. کچھ چینل اس طرح کے ہیں جس طرح انڈین چینلز ہیں، اور کچھ پاکستانی چینلز بھی آج کل اس طرح کے ہیں جن میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ صرف لو اسٹوریز ہی دکھا رہے ہیں. جیو کے ڈرامے ہیں، اس طرح آپ کے بھی رائل کے بھی ڈرامے ہیں جس میں جون سا بھی ڈرامہ ہے اس کو بس لو اسٹوریز پہ ہی کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی مل گئی ہو گیا وہ کا. تو ظاہر بات ہے لوگوں کا بھی وے آف تھنکنگ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. خیال میں میڈیا کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور میڈیا کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. میڈیا نے بلکہ ایک احساس سے ذمہ داری پیدا کیا ہے. ان تمام جو ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو دوسرے جو معاشرے کے جو دیگر اہم ادارے ہیں جیسے عدلیہ، جیسے پولیس اور وہ تمام، بلکہ اگر میڈیا یہ فعال کردار ادا نہ کرتا تو جتنی قتل و غارت اس وقت ہوتی ہے اور اس کو میڈیا کی کمپین کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جاتی ہے اس کو روکنے پہ، وہ پھر نہ روکا جاتا اور یہ قتل و غارت اور مزید بڑھتی. تو میڈیا نے میرے خیال میں اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اور یہ اس کا پازیٹیو کردار ہے. جو ٹیلی ویژنس پہ دکھایا جاتا ہے اس کا کافی اثر ہوتا ہے دیکھنے والوں کے دماغ پہ، اور اس وجہ سے اس لحاظ سے ٹی وی کی طرف اور کھنچتے چلے جاتے ہیں لوگ، اور اس سے بہت اثر پڑتا ہے خاص طور پہ آج کل کی نئی جنریشن پہ. یا بالکل ہے، میڈیا کو وہ چیزیں دکھانی چاہیے کہ جو بہتری کے لیے لے کے جاتی ہیں، جبکہ غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں. دیکھیں ہر چیز کے جو ہیں دو پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو ہر چیز میں ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کچھ ایسی ہی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے، ایسی ڈیٹیل میں اتنا بھی نہیں. اپنی ایک ملک کو بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزوں پہ پردہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. پورے ورلڈ میں اگر آپ اپنے ملک کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سی چیزوں کو اپنے اندر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ باہر تک اس کو پھیلائیں. میڈیا کے تھرو تو باہر جاتی ہے سب چیز. تو اس سے یہ ہے کہ بہت سی چیزیں مثلاً کہ آپ دیکھیں، آپ معاشی اس کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں بگاڑ پیدا ہو رہی ہیں. ہے ہی کیا سوسائٹی میں اب ٹینشنیں. ٹھیک ہے، یہ چیز بالکل ایک ہوتی ہے کہ آپ جب میڈیا ایک عوام کو بتاتا ہے نا کہ ہم کن کن مسائل سے دو چار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم ان کو سولو کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک بات کو بس اسی پہ کرتے رہیں. میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. عوام کو اس بات پہ آمادہ کریں نا. بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نہ سدھار ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پرسپیکٹو کس ویژن سے کوئی دیکھ رہا ہے چیز کو. تو ہر چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے دیکھنے والے کا کیا نظریہ ہے.
बिगाड़ का जिम्मेदार काफ़ी हद तक बन भी जाता है, उजागर भी करता है लोगों को, लेकिन ये कि नेगेटिव हो जाता है, बाज़ औक़ात हो जाता है। तो बस ये है कि हम मीडिया, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, तो इसीलिए बेटर ये होता है कि हम अगर नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं माशरे की, तो पॉजिटिव उससे ज़्यादा दिखाई जाएँ। तो जब पॉजिटिव दिखाएंगे ना जितना चीज़ें, तो क्योंकि मीडिया हर कोई देखता है टीवी, और पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड फिर हमें नेगेटिव देखना शुरू कर देती है ना, तो अगर हम पॉजिटिव दिखाएंगे तो फिर वर्ल्ड भी हमें पॉजिटिवली देखेगी। ये क्योंकि इतना नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव बहुत है। अगर आपके मॉरल स्ट्रांग हो और जहाँ आप रह रहे हैं आपकी फैमिली की मॉरल स्ट्रांग हो, और आप का जो मुआशरा है अगर उसको देखा जाए, अगर वहाँ अगर अच्छी बातें हो, अच्छी चीज़ें की जाएं, तो भले मीडिया में कुछ भी चले उसका फ़र्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप खुद अच्छे हो, या आपके आसपास फैमिली या रिलेटिव्स या जहाँ पढ़ते हैं या मुआशरा सोसाइटी, अगर वो बेसिकली अच्छी चीज़ें आप देखते हैं, नॉट ऑन मीडिया बट आसपास जो आप देख रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो भले आप टीवी पे कुछ भी देख लें, उसका फ़र्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है कि मीडिया का नहीं है। तो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच हमें जिस तरफ लेके जाती है, हम लोगों ने उसी तरफ जाना। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हम लोग अच्छी तरफ जाएंगे, और अगर हमारी सोच बुरी होगी तो हम लोग बुरी तरफ जाएंगे। तो मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। आप देखें केबल के ऊपर अगर कोई इंग्लिश मूवीज़ के चैनल आते हैं, तो वहाँ पे वो चैनल भी आते हैं जिनके हर वक्त तिलावत लगी रहती है। ये तो सिंपली वही बात आ रही है, हमारी सोच की बात है कि हम लोग अपनी सोच को किस तरफ लेके जाते हैं। भी अदा कर रही है और नेगेटिव रोल भी अदा कर रही है। नेगेटिव रोल ये है कि ये जो आजकल जो चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं दिखता। मतलब छोटे बच्चे का जहन जो होता है कोरे कागज़ जैसा होता है। अगर कोरे कागज़ पे जो भी बंदा लिखना चाहे वो लिख सकता है। अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छा बनेगा, माशरे के लिए अच्छा फ़र्द बनेगा। अगर बुरा लिखा जाए उसके दिमाग पे तो वो बुरा साबित हो सकता है। इसी वजह से हमारे माशरे में बहुत बिगड़ाव पैदा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि मतलब मीडिया हमारा ऐसा रोल अदा करे जिससे हमारी शख्सियत और भी बेहतर हो जाए। मीडिया का पॉजिटिव भी किरदार है, नेगेटिव भी किरदार है। दोनों किरदार मीडिया के हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें बताता है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव किरदार है, बट समटाइम्स सम पॉइंट्स नेगेटिव भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बस यही है। लेकिन बेहतर है कि मीडिया के पॉजिटिव वर्किंग करे ताकि जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है उसे पॉजिटिव चीज़ें पता चलें और वो पॉजिटिव आगे से काम करे। मीडिया का काफ़ी अच्छा भी किरदार है, मीन्स जो हमें चीज़ें बताने में, तो अगर मीडिया हमारे साथ हमें पॉजिटिव चीज़ें बताएगा तो वो उसका पॉजिटिव किरदार है। सर मीडिया दोनों तरह का किरदार अदा कर रहा है। असल में हमारा माशरा चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उस पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मीडिया जो है वो बिगाड़ का भी बाइस बन रहा है। अगरचे पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जब से बूस्ट आया है प्राइवेट चैनल्स का, उसके बाद से बहुत अवेयरनेस मिली है, लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन की हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने अपना टाइम वेस्टेज और ऐसी सरगर्मियों में भी ख़ुद को मुलव्विस किया है जो कि मीडिया की वजह से हुआ है, जो कि माशरे के लिए मनफी हैं। आज के कल के दौर में मीडिया माशरे में काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, कोई बिगाड़ का रोल प्ले नहीं कर रहा, और लोगों को ऐसी ऐसी अवेयरनेस दी जा रही हैं जो कि लोगों को के इल्म में भी नहीं थी। Throughout nowadays, media is playing a very positive role and very optimistic role nowadays. आजकल जो भी सोशल इवल्स हैं उन सब का जिम्मेदार मीडिया है। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो मीडिया इमेच्योर है और दूसरा मीडिया को हमने कमर्शलाइज कर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा मीडिया पैट्रियोटिक नहीं है। ठीक है, अगर हम मीडिया को कमर्शलाइज हमने किया है तो मीडिया शुड बी पैट्रियोटिक। ठीक है, हमारे जो सोशल इवल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि वो मीडिया को लोगों को इनफॉर्मल एजुकेशन भी दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देखें जी नेकी जो है वो सेलेबल नहीं है। ठीक है, ईवल इज सेलेबल, वर्च्यू इज नॉट सेलेबल। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि सीरियस टॉपिक्स जो है ना उनको इश्यूज बना दिया गया है। सीरियस टॉपिक्स हैज बीन द शोज। ठीक है, हर चीज़ को सेंसिटाइज करता है। ठीक है, और दूसरा इमेच्योर है। जो प्रिंट मीडिया वाले थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं। ठीक है, उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, दे जस्ट नीड मनी। ठीक है, वो लोगों को ब्लैकमेल करता है। ठीक है, और कमर्शलाइज होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वर्च्यू आप जो सेलेबल नहीं है। ठीक है,
evil is saleable, so they sell, media sells evil. I'm very sorry to say these comments, ठीक है, लेकिन मीडिया जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, ठीक है. मीडिया हमारे सोशल जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करे, और दूसरा मीडिया जो है ना वो अपनी लिमिट्स में रह के काम करे, ठीक है. मीडिया जुडिशरी को ना सिखाए कि जुडिशरी ने क्या काम करना है, मीडिया एग्जेक्टिव्स को ना बताए कि एग्जेक्टिव्स ने क्या रोल प्ले करना है, मीडिया जो है वो लेजिस्लेचर्स को ना सिखाए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करनी है, ठीक है. तो मीडिया शुड बी इन इट्स लिमिट्स, ठीक है. अपनी जो बाउंड्री है मीडिया की उसमें मीडिया काम करे, अपनी लिमिट्स में रह के काम करे, और जो ये है ना अपना कमर्शलाइज जो है इसको कर दिया ये तो ठीक है, लेकिन इसको पैट्रियोटिक वे में इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए. दूसरा, आजकल जो मीडिया ऑनर्स हैं दे आर मोस्टली लैंडलॉर्ड्स, दे आर फ्यूडल्स, ठीक है, और उन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उन्होंने वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, और अपने जो है ईवल्स को, अपनी लोगों को वो ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, कि उनकी जो है करप्शन या उनके जो ईवल्स हैं वो सामने ना लाए जा सकें. तो मीडिया ब्लैकमेल करता है, और इनके जो ऑनर्स हैं वो उसी के कहने पे काम करेगा मीडिया, ठीक है. इवन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके मोस्टली जो मालकान हैं दे आर नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, दे आर फ्यूडल्स, दे आर लैंडलॉर्ड्स, और दे आर मनी मेकिंग. मैं समझता हूँ कि मुआशरे में बिगाड़ का जो लोग समझते हैं जिम्मेदार मीडिया है, वो कतन नहीं है, बल्कि मीडिया तो अवेयरनेस देता है आवाम को, पब्लिक को, ऐसे लोगों को जिनका किसी के साथ कोई राब्ता भी नहीं होता, वो भी मीडिया के ज़रिए उन्हें अवेयरनेस आती है, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज मिलता है, हर किस्म का नॉलेज मिलता है, उन्हें घर बैठे भी मिल जाता है, और अपने ऑफिस या ड्यूटी के दौरान भी मीडिया के ज़रिए उन्हें अवेयरनेस आती है किसी भी काम के सिलसिले में. तो इसलिए ये कतन मत सोचिए कि मीडिया जो है मुआशरे के बिगाड़ का जिम्मेदार है. मुआशरे में बिगाड़ का तो जिम्मेदार नहीं है, मगर मीडिया ने काफ़ी आगाही पैदा की है अवाम में, और मीडिया वो एक हमारा पाकिस्तान का सरमाया है कि जो कि हर एक अच्छी और बुरी बात का वो वाज़िया तौर पे उसको वो क्लियर करता है. जो हमारे मुआशरे में बुराइयां हो रही हैं और इसको उजागर करना ये मीडिया का ही काम है, ये किसी आम आदमी कोई कर भी नहीं सकता. और ये जो भी मुल्क पाकिस्तान के हालात पैदा हुए हैं, ये आज के हुक्मरानों का ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है. और नहीं तो इतनी महंगाई, इतनी करप्शन, इतने मामलात जो कि कभी देखा नहीं हमने पूरी ज़िंदगी, और ये अच्छा बसता हुआ पाकिस्तान एक उजाड़ने की साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़. और ये मीडिया ही है जो हर बुराई को उजागर करती है और लोगों तक पहुंचाती है कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में ये हो रहा है, और इसको रोकना हम सब कौम पाकिस्तान का काम है. ठीक है ना जी. हम एक मुअज़्ज़ज़ शरीफ शहरी हैं, हमारा राइट बनता है कि अगर कहीं पे बुराई हो रही है, आने वाले जो लोग हैं या इंतज़ामिया है उनको आगाह किया जाए. ठीक है ना जी. और जितने भी पाकिस्तान में ये चल रही है मामलात मुल्क के ख़िलाफ़, करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, और ये लोड शेडिंग, बिजली की, गैस की लोड शेडिंग, मैश तबाह होकर रह गई है पाकिस्तान की, हर चीज़ ख़त्म हो गई है. और ये हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि मीडिया हर एक मौजू को, हर एक बुराई को उजागर करता है. मीडिया जिम्मेदार नहीं है, मीडिया जिम्मेदार हम लोग हैं जो इस मुआशरे का हिस्सा है. वो ऐसे है, आप देखें कि आज से 20-25 साल पहले जो टीवी चलता था उसमें ना फहाशी थी, जो है ये एंकर पर्सन सर पर दुपट्टा लेकर बैठती थी, बड़े महज़ब किस्म के सवालात होते थे. अब निजी ज़िंदगी को इतना डिस्कस करते हैं यहाँ कि शर्म आने लगती है जो सवाल वो जवाब करती हैं. ये गलत बात है. हमारे इस्लाम में कुछ हदूद हैं, कुछ दायरे हैं, उसके अंदर रहकर करना चाहिए. अब आप देख, ये पता नहीं इंडिया के जो एंकर पर्सन हैं या उनकी जो फिल्में हैं, उनके ड्रामे, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये वतीरा इख्तियार किया है. मौलाना साहब आए होते हैं इस्लामी प्रोग्राम में, और जो एंकर पर्सन होती है वो आधी निक्कर पहन कर, आधे जनाब उसकी टांगें नंगी होती हैं और वो सवाल कर रही होती है. ना सर पर दुपट्टा होता है, ना कोई और चीज़ होती है, बाहें भी उसकी हाफ स्लीवलेस पहनी. ये गलत बात है. इससे मुआशरे में जो लड़कियां हैं, हमारी नई पौधा, उसे दे दे कर कहती हैं हम भी ये अपनाएं. फिर इतने ड्रामों में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं. बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ियां रखी हैं. हमारा 99% लोग तो गरीब हैं. उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए जिसमें वो जो है उनके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिशात ना पैदा हों. कार्टून देखने के बैठे रहते हैं. वो कहते हैं हमने कार्टून ही देखने, हमने पढ़ना नहीं है. हम पिटाई भी करते हैं, फिर भी हमारा कहना नहीं मानते. तो
क्या कहते हैं? हम तो पढ़ती हूँ कार्टून। अब कार्टून नहीं देखते, अब मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। पहले नहीं पढ़ती थी, अब मैं ज्यादा पढ़ती। कि बच्चे ज़्यादा फाइट करते हैं, वो जिस तरह कार्टून्स में सिखाते हैं वही चीज़ें बच्चे घर में भी करते हैं और स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सब कुछ ही है, ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहा है मीडिया। कार्टून्स तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, मीडिया जो है, मीडिया का किरदार जो इस वक्त है वो तो पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना अहम किरदार मीडिया अब अदा कर रहा है, आज तक नहीं था, और जो चीज़ें आज तक माशरे में सामने आई नहीं थी वो एक्सपोज कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और ये एजुकेट कर रहा है लोगों को मीडिया, कि जहाँ जहाँ को बुराई है उसको पिन पॉइंट कर रहा है। और उसकी वजह से ये जो सारा मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन आ रही है इस हवाले से, ये मीडिया के पिन पॉइंट करने से आ रही है। कि मोस्टली जो है ना बच्चे वाकई अडॉप्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। और जिस तरह से हम मूवीज़ आ रही हैं जिस तरह की, और जो सुपरमैन उस तरह के कार्टून लग रहे हैं, तो बच्चे वाकई इस तरह के कुछ हादसे हमने सुने भी हैं कि बच्चों ने सुपरमैन बन के जंप लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर मीडिया हमें यानी सारी इन चीज़ों को, माशरे में जो बुराइयां हो रही हैं, इनको अगर ना उजागर करता तो हम लोग भी शायद क्या कहते हैं उसको, अपने आप को कवर ना कर पाते। और हमें पता जब चलता है कि भाई मीडिया जब दिखाता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कुछ हो रहा है आवाम के साथ, कौन सही है कौन गलत है, ये हमें अवेयरनेस हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला मीडिया की वजह से हमें अवेयरनेस हुई है। मेरा ख्याल है कि मीडिया का इसमें ज़्यादातर नहीं है कि वो बिगाड़ पैदा कर रहा है, असल हकीकत जो है वो सामने ला रहा है और हम लोगों को अवेयर कर रहा है इन चीज़ों से। यानी उसकी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स यानी सोसाइटी पे जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। वो पॉजिटिव यानी जो डिस्कशंस होते हैं, पॉजिटिव जो रिजल्ट्स होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, वो डिस्कस नहीं करते हैं ना मीडिया के ऊपर। सिर्फ नेगेटिव्स यानी वो लेते हैं कि यानी पाकिस्तान के अंदर जो है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो लोग डिस्कस करते हैं। कभी जो पाकिस्तान की इकॉनमी इंप्रूवमेंट के बारे में उन्होंने की, कभी जो है पॉलिटिकल जो है उनके डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने आज तक कोई बात की नहीं कि इस तरह होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में उनकी कोई वो है नहीं, ठीक है ना। हम जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके बारे में ये काफ़ी वो डिस्कशन नहीं करते। अभी आप मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का इशू ले लें, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है ये इसमें जो है हम समझते हैं मीडिया को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। मीडिया ने जो है और प्रोवोक किया है सिचुएशन को। आप देख ले किस तरह ने किया है। वहाँ के बता रहे वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे कि यार लोग वो हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं, लोगों को राइट्स वो नहीं मिल रहे हैं, लोगों के वो नहीं है। वहाँ के जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, उनको ये और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताते हैं कि यार हमने जो है फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पैकेज आया, पैकेज से लोगों को कितने जो है एडवांटेज मिले हैं। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, अभी जो है 2 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे उन्होंने जो है यानी बलूचिस्तान पैकेज भी जो है, एक जो है लोरलाई में उनकी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे तुरबा के हवाले से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उन्होंने आज तक इन्होंने जो ये बात डिस्कस नहीं की कि यार ये क्यों इस तरह हो, ये वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, वो अहम जो इश्यूज है ना, जो अहम मसले हैं वो ये डिस्कस नहीं करते। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमेशा लेते हैं कि यार वारंट ये जो है अमेरिका हैगा तो ये होगा, ठीक है ना। ये फॉरेन पॉलिसी जो है यानी हमारे जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। किसी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बिल्कुल डिस्कस करते हैं नहीं, सिर्फ जो है नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और जो है यानी सप्रेशन की तरफ लोगों को लिया जा रहा है, और जो है यानी नेगेटिविटी की तरफ लोगों को लिया जा रहा है। आप खुद सोच। सर मेरा ये है कि बेसिकली मीडिया पे जो आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं, मसलन एक ख़ानदान के साथ कुछ हो जाता है तो यानी मतलब है कि थोड़ा सा बाज़ औक़ात यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट बाज़ औक़ात हो जाती है, तो वो इतना प्रोमिनेंटली मीडिया पे दिखाया जाता है कि वो उसकी मतलब है कि तज़लील हो जाती है। बाज़ औक़ात फिर ये भी बताया जाता है कि ये जनाब इनका ये नाम है और ये इस तरह की लड़की थी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इससे मतलब है कि और उसकी ना तज़लील हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर वो फैमिली तौर पे वो मतलब है कि बैग मतलब कि बैड असरात माशरे पे पड़ते हैं, जिनकी वजह से लोगों की मतलब है कि उनकी इमोशन के साथ वो एक खिलवाड़ हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब है कि ये शो नहीं करना चाहिए। जस्ट ये करना चाहिए अगर आप जिस तरह मतलब है कि डिफरेंट चैनल्स पे, जियोज़ पे या जो जिस तरह आप रॉयल चैनल उस पे जो चीज़ें दिखाते हैं, जो ड्रामे एक बनाते हैं कि एक फैमिली के साथ, उनके साथ एक लड़की के साथ इस तरह हुआ था, या मसलन एक इनके पास इनके घर में डाका पड़ा था, तो ये नहीं शो करना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ें ज़रा निगलेक्ट करनी चाहिए। नहीं होती है, हकीकत बताती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, कोई भी जो है मीडिया के खिलाफ बोलेगा, ठीक
ٹھیک ہے، میڈیا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کسی بھی معاشرے میں، کیونکہ میڈیا جو ہے حقیقت دکھاتی ہے، جو بھی کردار ہوتا ہے، جو بھی شخص جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے تفصیلاً بتاتی ہے. تو یہ میرا رائے یہی ہے کہ جو ہے میڈیا کو جو ہے نیگیٹو رول نہیں دینے، پازیٹیو تھنکنگ، مطلب یہ پازیٹیو تھنکنگ میڈیا کو جو ہے پازیٹیولی لینا چاہیے. جی میڈیا اگر کچھ اس میں بھی ہیں، اگر کہ کوئی خبر جب آتی ہے تو وہ اگر بغیر اس کے وہ تصدیق کے جب وہ اس طرح چلائی جائے تو لوگوں میں اس طرح پھیلتا ہے کہ جی، تو اس طرح میڈیا کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے کہ وہ جب بھی کوئی خبر آئے تو وہ اس کو پروو اس کا وہ اتھینٹک خبر ہو تو وہ عوام کے لیے چلائی جائے تاکہ وہ ان کو جو بھی رپورٹ ملے. تو اس کے علاوہ میڈیا کا جو ہے وہ پاکستان اب جس طرح یہ لاسٹ 10 ایئرز میں جب میڈیا پاکستان میں آیا تو اس میں بڑی چینجنگ آئی ہے کہ جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی اتنے معلومات نہیں تھی، تو اب میڈیا کی وجہ سے یہ آج اگر لوگ بات کرتے ہیں تو سیاست کے بارے میں جو بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور آج اسی کی وجہ ہے کہ آج اہم اتنا بالکل معمولی سا بندہ بھی ہے تو وہ بھی آپ کو اس کے ملک کے حالات کے بارے میں بڑی اچھی طرح بتائے گا. تو یہ تو ہے کہ اس طرح ہر دو پہلو ہیں. کہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس حوالے سے مختلف طلباء طالبات سے بات کی، مختلف فیملیز سے بات کی، خواتین سے بات کی، بزرگ خواتین سے بات کی، مردوں سے بات کی، عام شہریوں سے بات کی. اور اس سے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ میڈیا کو الزام دیتے ہیں کہ میڈیا تمام برائیوں کا ذمہ دار ہے، لیکن کسی حد تک لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی حد تک تو آپ اس کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے. لوگوں کو پل پل کی خبر جو ہے ایک سیکنڈ میں مل جاتی ہے. پہلے دیکھیے گا ناظرین کہ جب اخبارات ہوتے تھے تو 24 گھنٹے بعد خبریں ملتی تھی، لیکن آج الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد ہر خبر، وہ چاہے کسی حادثے کی خبر ہو، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، وہ فوری طور پہ ناظرین کے پاس پہنچ جاتی ہے. ناظرین، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کچھ معاملات میں میڈیا شاید کچھ برائیوں کا ذمہ دار ہو، لیکن میڈیا کو مکمل طور پر ذمہ دار قرار دینا کسی صورت بھی درست نہیں ہے. میڈیا کی وجہ سے ہی آج تمام برائیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ چاہے کتنا بھی بچنا چاہے اپنی بے قاعدگیوں سے، بدعنوانیوں سے، لیکن وہ بچ نہیں پاتی. تو ناظرین، اس لیے ہماری نظر میں اور لوگوں کی نظر میں میڈیا اتنا ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کرنا آپ کے پاس ہے کہ کیا میڈیا ذمہ دار ہے یا نہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرہ مین جاوید وارسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.